بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سی مخلوقات کی تخلیق کی اور انہی مخلوقات میں ایک جنات بھی شامل ہیں، ایک اندیکھی اور ایک طاقتور مخلوق۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا، لیکن جیسے ہی وہ اپنے مقصد سے ہٹتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جہاں دنیا میں بہت سے مسائل موجود ہیں، وہاں پر ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آیا جنات سے بھی انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے؟ تو اس کا جواب ہاں ہے کہ جنات کی وجہ سے بھی انسانی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح تمام مذہبی اور تاریخی واقعات کی تفصیل کے لیے آپ ہمارے چینل ریسرچ ود عباس کو لائک، سبسکرائب اور آگے شیئر کر دیں۔ دوستو، سب سے پہلا یہ سوال کہ کیا جنات انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں اور کیا وہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ تو جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن سود خور اس حالت میں پیش ہوگا کہ جیسے اس پر جنات کا اثر ہو، یعنی کہ ایک انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا جب جنات کا اس پر اثر ہوتا ہے، وہ اپنے تمام تر ہوش و حواس سے باہر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان میں اس طرح ہوتا ہے جیسے خون رگوں میں گردش کر رہا ہو۔ اسی طرح ہر انسان کو شیطان مختلف خیالات و وسوسے دلواتا ہے کہ اس دنیا کو کس نے پیدا کیا، فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ وہ یہ خیال دلواتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حد تک پہنچ جائے وہ اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس خیال کو چھوڑ دے۔ اسی طرح نماز کے دوران بھی ایک خزب جن مختلف وسوسے دلواتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اس طرح کے خیالات نماز میں آئیں تو تم وہاں بھی اللہ کی پناہ طلب کرو اور اپنے بائیں جانب 3 دفعہ تھوک دو۔ لازم نہیں کہ آپ نے تھوکنا ہی ہے، بس اشارتاً آپ 3 دفعہ وہاں پر تھوک دیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک انسان کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ فرشتہ اسے نیکی کی کاموں کی طرف آمادہ کرتا ہے اور جن اسے برائی کے کاموں کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ صحابہ نے ہمت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی جن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا ہے اور مجھے نیکی کے کاموں کی طرف ہی آمادہ کرتا ہے۔ دوستو، یہ قرآن مجید اور احادیث جس سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ جنات کا انسانی زندگی پر اثر انداز ہونا لازم ہے، لیکن اسی کے ساتھ ان کا اثر اس قدر نہیں ہوتا کہ آج تک کسی نے یہ نہیں سنا کہ جنات نے کسی انسان سے بینک میں چوری کروائی ہو یا اسی طرح دوسرے معاملات۔ ہاں، اثر انداز ضرور ہوتا ہے، لیکن اس حد تک نہیں جتنا کہ انسان اپنے وہم سے ان کو خود پر حاوی کرتا ہے۔ اور اسی طرح جب پچھلی ویڈیو میں بیان کیا گیا کہ دور جاہلیت میں جب لوگ ویرانوں میں سے گزرتے تو یہ کہتے کہ ہم اس ویرانے کے جنات کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ جنات ان کی اس نادانگی کی وجہ سے اور سرکش ہو گئے، کیونکہ صاف ظاہر سی بات ہے، ان کے بڑے ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، جب انہوں نے ایسی باتیں کی کہ ویرانوں میں ان کی پناہ طلب چاہی تو جنات اور سرکش ہو گئے۔ اسی طرح دوستو، جادو کے متعلق کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے جو کہ منکرین حدیث ہیں، اور اسی طرح دوسرے عقائد و نظریات والے بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو نہیں ہوا، وگرنہ تو وحی کے متعلق ہمیں شک پڑتا ہے، جبکہ یہ بالکل الٹ بات ہے۔ اس کنڈیشن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گزارنا تھا، کیونکہ ہر آزمائش سے انبیاء اور نیک لوگوں کو گزارا گیا، جو کہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے گھر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، جس کنڈیشن کا حضرت عائشہ کو بھی نہ پتہ چلا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ عائشہ، تم جانتی ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے مسلسل کیوں دعا مانگ رہا تھا؟ تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے لٹا دیا۔
रवायात के मुताबिक एक हज़रत जिब्रील थे और दूसरा हज़रत मीकाइल। एक फरिश्ता सर की तरफ खड़ा हो गया और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक की तरफ। उन्होंने कहा कि इस शख्स के साथ क्या मामला हुआ है। दूसरे ने कहा कि इन पर जादू हुआ है। बोला किसने किया? बताया कि बनु ज़ुरैक के एक लदीद बिन आसम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। पूछा कैसे किया? उन्होंने कहा कि इनकी कंघी और इनके बालों से, जो कि खजूर की एक छाल में लिपटे हुए हैं। सो एक ने पूछा कि वो जादू इस वक्त कहाँ है? दूसरे ने कहा ज़रमान नामी कुएं में एक पत्थर के नीचे दबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद असहाब जिनमें हज़रत अली और हज़रत अमार इब्न यासर थे, उनको लेकर उस जगह पर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि उस जगह के दरख्त ऐसे थे जैसे शैतान के सर हों, और उस कुएं का पानी ऐसी सुर्खी माइल जैसे उसमें मेहंदी को मिलाया गया हो। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से तमाम तर जादू निकाला और फिर उसी कुएं को मिट्टी से भर दिया। हज़रत आयशा ने पूछा कि आपने यह तमाम तर मामला खुल्लम खुल्ला बयान क्यों नहीं किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मुसीबत से निजात दे दी, सो मैंने सोचा कि लोगों में ये बुराई ना फैले, इसलिए मैंने इस काम को वहाँ पर ही तमाम कर दिया। और इसी के साथ दोस्तों, इस जादू से कोई वही पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो अल्लाह ताला के ज़िम्मे है कि अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि इस कुरान के हम ही मुहाफ़िज़ हैं, सो हम इसी की हिफाजत करने वाले हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का ये असर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई काम करते तो भूल जाते। आप ये सोचते कि मैंने वो काम कर लिया, लेकिन हकीकत में वो ना किया होता। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात मुसलसल दुआएं की और ये तमाम तर मामला खुला। इसी तरह एक हदीस में कि शैतान अपना तख्त पानी पर सजाता है और अपने लश्करों को रवाना करता है और इनसे पूछता है कि तुमने आज क्या काम सर अंजाम दिया। कोई कहता है कि मैंने फ़लाँ गुनाह करवाया, कोई कहता है मैंने फ़लाँ, वो कहता है तूने कुछ भी नहीं किया। एक कहता है कि मैंने मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई डाल दी। सो वो इसे अपने गले लगाता है और कहता है कि सबसे अहम काम तो तुमने किया। सो दोस्तों, इन अहादीस से वाज़ेह है कि जिन्नात और जादू से इंसानी ज़िंदगी मुतासिर होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में आजमाइश और आसानियाँ पैदा कर रखी हैं। सो इन तमाम तर मामलात से अल्लाह ताला ने इंसान को गुजारना है, लेकिन इसी के साथ साथ इनका इलाज भी रूहानी तौर पर मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ अहादीस और कुरान मजीद से हमें मिलता है। सो दोस्तों, सबसे पहले कि सूरत अन-नहल में कि कुरान मजीद पढ़ने से पहले तुम शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह मांगा करो, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। सो दोस्तों, ये पनाह इसलिए कि कुरान मजीद के सियाक़ो सबाब को बेहतर समझने और इसी तरह बुरे ख़यालात व वसवसे और इसी तरह शक व शुबहात जो कि कुरान मजीद पर कुफ्रिया नताइज तक पहुँचते हैं, उन तमाम चीज़ों से पनाह के लिए अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से पनाह मांगना। इसी तरह सूरत मोमिनून में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शैतानी वसवसों से पनाह मांगने की तलकीन की गई। इसी तरह एक और हदीस में जब दो सहाबी आपस में लड़ते हैं तो इनको अलग करवा कर फिर इनको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने की तलकीन करते हैं कि शैतानी ख्यालात और इस तरह का वसवसा इनसे दूर जाता रहे और हत्ता के गुस्सा भी। इसी तरह एक और हदीस में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का क़याम फरमाते तो आप फरमाते अल्लाहु अकबर कहते, फिर यूँ कहते सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, पाक है तू अल्लाह अपनी हम्द के साथ, तेरा नाम बड़ी बरकत वाला है, तेरी शान बहुत बुलंद है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। फिर कहते ला इलाहा इल्लल्लाह 3 मरतबा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फिर कहते अल्लाहु अकबर कबीरा 3 मरतबा, अल्लाह सबसे बड़ा और बहुत बड़ा है। फिर पढ़ते आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, कि मैं अल्लाह सुनने वाले जानने वाले की पनाह चाहता हूँ कि शैतान मरदूद मुझ पर कोई जुनून का असर डाले या मुझे तकब्बुर पर आमादा करे, गलत शेर व शायरी की तरफ ले आए।
इसी तरह एक और हदीस में एक सहाबी के घर माले गनीमत को चोरी करने के लिए और एक सहाबी के बाग में खजूरों को चोरी करने के लिए एक शख्स आता है। जब सहाबी उससे पूछते हैं तू कौन है, तो वो कहता है मैं इंसान नहीं बल्कि जिन हूँ। पूछते हैं तुम क्या करने आए हो, वो कहते हैं हमने सुना है कि तुम अपने माल से सदका करते हो, सो हम अपना हिस्सा लेने आए हैं। सो वो उनसे पूछते हैं कि तुमसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसने कहा कि तुम सूरह अल बकरा की आयतल कुर्सी को पढ़ो, सो तुम हमसे पनाह में रहोगे। अगर सुबह पढ़ोगे तो शाम तक, और शाम को पढ़ोगे तो सुबह तक हमसे पनाह में रहोगे। और दूसरे माले गनीमत को चोरी करने के लिए 3 रातों तक वो शख्स आता है, जैसे वो सहाबी पकड़ते हैं। तीसरी रात जब वो उसे पकड़ता है तो वो उसे आयतल कुर्सी का वजीफ़ा देता है कि तुम्हें अगर मुझसे पनाह चाहते हो तो इसको पढ़ो। अगले दिन सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा मामला बतलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जानते हो वो कौन था? फरमाते हैं नहीं। कहा वो शैतान था, है खबीस था और झूठा था, लेकिन बात सच्ची कर गया। इसी तरह एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को अल-मुअव्विज़तैन यानी कि 3 पनाह देने वाली सूरतें सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ने की तलकीन कही, जिसमें सूरत इखलास, सूरत अल फलक और सूरत अन्नास मौजूद हैं कि इनके पढ़ने से तुम्हें हर शर से ये महफूज रखेंगी। इसी तरह एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर रोज़ सुबह शाम को बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, मैं उस अल्लाह के नाम के ज़रिए से पनाह मांगता हूँ जिसके नाम की बरकत से ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती, और वो सुनने वाला जानने वाला है। 3 बार पढ़े, इसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। इसी तरह एक और हदीस में एक सहाबी ने सुबह आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मुझे रात को एक बिच्छू ने काटा जिसकी मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ये कलमात पढ़ते आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ लम तज़ुर्रुका, ये पढ़ते तो तुम्हारी इस बिच्छू से भी हिफाजत की जाती। इसी तरह एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह के वक्त ये पढ़ता है तो शाम तक, और शाम के वक्त अगर पढ़ता है तो सुबह तक उसकी शैतान से हिफाजत की जाती है और उसे अजर व सवाब भी मिलता है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसी तरह सूरत अल बकरा की आखिरी आयत आमन और रसूल से लेके फंसुन्ना अलल कौमिल काफिरीन तक पढ़ने से भी अल्लाह ताला घर को शैतान से महफूज रखता है। इसी तरह नज़र बद भी जो कि इंसानी जिस्म पर असर डालती है, जैसा कि एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लड़की को देखा जिसका चेहरा जर्द हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर दम करो, इसे नज़र बद लगी है। इसी तरह एक और मौके पर सहाबा ने एक कबीले के सरदार पर सूरत फातिहा का दम किया, बदले में उन्होंने कुछ उनको बकरियां दी। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने सारा मामला बतलाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसमें से मुझे मेरा हिस्सा भी दो, और इसे रुक़िया कहा जाता है, यानी कि जो इलाज करता है रूहानी तौर पर, वो उसके बदले अगर कोई मुआवजा तलब करता है तो उसे रुक़िया कहा जाता है, जो कि जायज़ है, और अगर कोई फ़ी सबीलिल्लाह करता है तो उसके लिए ढेरों अजर व सवाब है। इसी तरह सांप और बिच्छू के काटने पर भी सूरत फातिहा का दम किया जाना अहादीस से साबित है। इसी तरह एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जिस्म में दर्द के मुतल्लिक़ शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि आप अपने दर्द वाली जगह पर हाथ रखें और 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ो और 7 बार ये दुआ कहो, आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु, मैं इस चीज़ के शर से जो मुझे अपनी जिस्म में मौजूद है और जिसका मुझे डर है, अल्लाह ताला और इसकी कुदरत की पनाह में आता हूँ। इसी तरह एक सहाबी कहते कि मैंने सूरत फातिहा पढ़नी शुरू की और मैं अपने थूक से किसी को दम करता तो उसे तंदुरुस्ती मिल जाती। इसी तरह एक और मौके पर सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते कि दौरे जाहिलियत में हम कुछ दम किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दम मेरे सामने पढ़ो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे वो दम पड़ेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें कोई हर्ज नहीं है, तुम पढ़ो।
یعنی کہ اس دم میں کوئی ایسے کفریہ اور شرکیہ کلمات موجود نہ ہوں۔ اسی حدیث سے ثابت ہے کہ دور جاہلیت میں جو کلمات پیش کیے جاتے وہ پہلے کسی مذہب کے ہوں گے، یعنی کہ عیسائی یا دوسرے یہودیوں کے۔ آپ جادو کا علاج دوسرے مذاہب سے بھی کروا سکتے ہیں کہ اگر ان میں کفریہ اور شرکیہ کلمات موجود نہ ہوں۔ دوستو، جنات، جادو اور نظر بد جو کہ حقیقت ہیں، ان قرآنی آیات اور احادیث سے ثابت ہیں، اور ان کے بچنے کے لیے تمام تر کلمات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلا دیے۔ باقی اللہ تعالیٰ انسان کو اس دنیا میں ہر آزمائش سے گزارتا ہے۔ لازم نہیں کہ ایک چیز ہم پر آئے اور وہ ہم سے جاتی رہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے اور ہر آزمائش سے ہمت اور اپنے عبادت اور طریقے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔